ارشاد اعظم: چونکہ خداوند یسوع مسیح مر گیا اور دوبارہ جی اٹھا تاکہ ان سب کے لیے نجات کا باعث بنے جو اس پر ایمان لائے، اس لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے تاکہ پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچا سکیں۔ میں مشن ہوں۔ متی اپنی انجیل کا اختتام اس کے ساتھ کرتا ہے، جسے ہم ارشاد اعظم کہتے ہیں۔ یہ ایک طاقتور بیان ہے۔ ہم اس کے بارے میں متی 28 باب اس کی 19 اور 20 میں پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بہت جانی پہچانی آیات ہیں جو اناجیل کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں، اور یسوع مسیح کے آسمان پر واپس جانے سے پہلے اس نے جو کچھ کہا اس کی انتہا۔ اور اس نے کہا، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور یہ ارشاد اعظم کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو۔ یہ وہ شاگرد ہیں جو تم نے بنائے ہیں کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہاں ترتیب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے 11 رسولوں کو یہ پیغام بہت مخصوص انداز میں پہنچایا۔ ہم نے پڑھا کہ وہ اس کے ساتھ گلیل تک گئے تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کس پہاڑ پر تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ پہاڑی واس کے دوران موجود تھے، اور یہ ممکن ہے جہاں اس نے انہیں تعلیم دی اور مبارکبادیاں سنائیں، اور وہ ناقابل یقین پیغام بیان کیا جسے ہم پہاڑی واس کہتے ہیں۔ اور یقیناً یہ ان آدمیوں کے ساتھ یسوع مسیح کا آخری ظہور نہیں تھا۔ وہ نہ صرف ان پر ظاہر ہوا بلکہ دوسروں پر بھی ظاہر ہوا۔ ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن اس نے براہ راست رسولوں سے بات کی۔ اب رسولوں سے براہ راست بات کرتے ہوئے اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف ان کی ذمہ داری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمام ایمانداروں سے بہت منفرد انداز میں بات کر رہا تھا، اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہوا اور خدا کا منصوبہ کیا ہے، اور میں یہی آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گی۔ اب اس سب سے پہلے آپ کو ڈرامائی مثال دینا چاہوں گی کہ وہ ارشاد اعظم 2 آدمیوں کی زندگی میں کیسے انجام پایا، اور وہ پالوس اور برناباس ہیں۔ اور یہ پہلا مشنری سفر تھا، اور اس پہلے مشنری سفر میں ہم اعمال 14 باب اس کی 21 سے 23 آیت میں پڑھتے ہیں۔ اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر، اگر آپ اعمال کی کتاب میں واپس جائیں تو وہ شہر دراصل دربے ہے، اور دربے میں منادی کرنے کے بعد اور بہت سے شاگرد کر کے اب یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جاؤ شاگرد بناؤ۔ پالوس اور برناباس کیا کر رہے ہیں؟ وہ شاگرد بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اکونیم اور انطاکیہ کو واپس آئے۔ ویسے وہ بہت سے شاگرد بنا چکے تھے، اور ظلم و ستم کی وجہ سے انہیں وہاں سے جانا پڑا، لیکن اب وہ ان تینوں شہروں میں لوٹ آئے ہیں اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جاؤ شاگرد بناؤ۔ وہ ایسا ہی کر رہے تھے۔ یسوع نے کہا انہیں تعلیم دو، ان شاگردوں کو وہ سب کچھ سکھاؤ جس کا میں نے تمہیں حکم دیا۔ بس پالوس اور برناباس ان شہروں میں واپس آئے جہاں انہوں نے شاگرد بنائے تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کی، اور نئے عہد نامہ میں اس لفظ کی شکل تعلیم اور نصیحت کی ایک قسم ہے۔ وہ ارشاد اعظم کے دوسرے حصے کو انجام دے رہے ہیں، اور وہ واپس جاتے ہیں اور یہ نصیحت دیتے ہیں کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ وہ انہیں خبردار کرتا ہے، تمہیں ستایا جائے گا جیسے تم نے انہیں مجھے ستاتے دیکھا۔ اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزے سے دعا کر کے انہیں خدا کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ تو یہاں ہمارے پاس 2 آدمیوں کی ایک خوبصورت مثال ہے جنہیں خدا نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ارشاد اعظم کو انجام دینے کے لیے بلایا، اور یسوع مسیح کا یہی مطلب تھا جب اس نے کہا جاؤ شاگرد بناؤ اور انہیں سکھاؤ۔ اب یہ سب ہم پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ خیر، مجھے یقین ہے کہ اس ارشاد اعظم کو انجام دینے کی ہماری ذمہ داری کے تعلق میں 5 پہلو ہیں۔ پہلا، واپس جانا ہے، اور ہم اعمال اس کا پہلا باب 8 آیت میں دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح ان 11 شاگردوں سے بات کر رہا تھا اور انہوں نے کہا، اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر سے عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا تمہارا کام نہیں۔ اور پھر وہ اعمال پہلا باب اس کی 8 آیت میں کہتا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔
اور रसूलों के साथ ऐसा ही हुआ। और फिर यकीनन पालूस मसीह में तब्दील हो गया और बरनबास के साथ मिलकर गैर कौमों के लिए एक अजीम रसूल बन गया, जैसा कि हमने उन्हें इरशाद आज़म को अंजाम देते हुए देखा है। तो हाँ, ये रसूलों के लिए सबसे पहला और सबसे अहम है, लेकिन गौर करें कि इसमें एक और पहलू शामिल है और ये भेजना है। अब इससे पहले कि पालूस और बरनबास इस सफ़र पर जाते, हम अमाल 13 में पढ़ते हैं, अंताकिया में उस कलीसिया के मुतल्लिक जो वहाँ थी कई और नबी और मुअल्लिम थे, यानी बरनबास और शमाउन जो काला कहलाता है, और लूकियस करीनी और मनाहिम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला है। ये दिलचस्प था, ये एक मसीही उस शैतान रोमी शहंशाह के दोस्त और सौल पालूस का पुराना नाम था। जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूहुल कुद्दस ने कहा, अब ये उन आदमियों पर बराह रास्त मुकाशफा थी, वो नबी और उस्ताद थे। मेरे लिए बरनबास और सौल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। उन आदमियों में से खुदा ने उन आदमियों को इससे बात की तस्दीक के लिए इस्तेमाल किया कि वो बरनबास और सौल को काम के लिए बुला रहा है। और फिर हम देखते हैं कि जब वो पहले सफ़र पर गए तो क्या हुआ, और हम इमाल की किताब में पालूस के तमाम मिशनरी दौरों को देखते हैं। तब उन्होंने रोज़ा रख कर और दुआ करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। तो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ कलीसिया की ज़िम्मेदारी की एक खूबसूरत मिसाल मौजूद है, अंताकिया की कलीसिया। ऐसे लोगों को भेजने के लिए जो वाकई में खिदमत करने के लिए बुलाए जाते हैं और खुशखबरी को इंतहा तक पहुँचाते हैं। लेकिन हमारे पास भेजे जाने का भी पहलू मौजूद है। फिलिपियों 4 बाब उसकी 15 से 17 आयत। मुझे ये मिसाल पसंद है। पौलुस फिलिप्पस की कलीसिया को लिख रहा है, और ए फिलिपियो, तुम खुद भी जानते हो कि खुशखबरी के शुरू में जब मैं मकीदुनिया से रवाना हुआ तो तुम्हारे सिवा किसी कलीसिया से लेने देने के मामले में मेरी मदद ना की। तुमने मेरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दिया ताकि मैं यीशु मसीह की खुशखबरी की मुनादी जारी रख सकूं। चुनाचे थसलनिकिये में भी मेरे एहतजाज रफ़ा के लिए तुमने एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूँ, बल्कि ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे हिसाब में ज़्यादा हो जाए। और मुझे वो हतमी बयान पसंद है क्योंकि वो लेन देन पर ज़ोर दे रहा है। और पालूस यहाँ ये कह रहा है कि जो तुम मुझे सहारा देने के लिए देते हो, जो तुमने मुझे दिया उसमें से मसीह की खिदमत कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे दिया। और जैसा मैं मसीह की खिदमत कर रहा हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ वो खुदा की बादशाही में तुम्हारे लिए अजर जमा हो रहा है। इसके बारे में सोचो। हर वो चीज़ जो हमें खुशखबरी को फैलाने की मदद करती है, खुदावंद अपने अजीम एहतसाबी निज़ाम में हर उस कोशिश का दुरुस्त रिकॉर्ड रखता है जो हम इरशाद आज़म को अंजाम देने के लिए करते हैं, ख्वाह वो जाना हो या देना हो। इसके बारे में सोचो। मैं इसके बारे में सोचती हूँ जब मैं खुदावंद और उन लोगों की खिदमत करती हूँ जो मेरी खिदमत की हमायत करते हैं। मैं खुदा की बादशाही में उनका अजर जान रही हूँ। इससे मुझे ज़बरदस्त हौसला मिलता है। मैं ये सिर्फ अपने लिए या खुदा के लिए नहीं कर रही, लेकिन दूसरों के लिए। और ये एक दिलचस्प तस्वुर है। और फिर दुआ है। ये चौथा पहलू है। कुलसियों 4 बाब उसकी 2 से 3 आयत। दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ इसमें बेदार रहो, और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ किया करो। अब इसके बारे में सोचें। अगर पालूस को दुआ की ज़रूरत थी तो हम सब का क्या होगा जो मसीह की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मसीह की खिदमत कर रहे हैं। गौर करें। और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ किया करो कि खुदा हम पर कलाम का दरवाज़ा खोले ताकि मैं मसीह की उस भेद को बयान कर सकूं जिसके सबब से कैद भी हूं। लेकिन वो एक रोमी गार्ड से बंधा हुआ है और उसने कुलसियों की कलीसिया से कहा, मेरे लिए दुआ करो। अगर पालूस को दुआ की ज़रूरत है तो मुझे दुआ की ज़रूरत है। हम सबको इस ताल्लुक़ में दुआ की ज़रूरत है जो हम इरशाद आज़म को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं, ख्वाह हम दे रहे हों या जा रहे हों, हमें दुआ की ज़रूरत है। और फिर आखिरकार मैं इसे ज़िंदा रहना कहती हूँ। हमने 5 पहलुओं को देखा है, और जब आप ज़िंदा रहने की बात करते हैं तो ये मुझे यूहन्ना 17 पर वापस ले जाता है, जहाँ यीशु मसीह ने हमारे लिए दुआ की थी। और देखें कि उसने क्या दुआ की। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि वो 11 आदमी जो रात को मेरे पीछे चल रहे हैं,
जब मैं वादी कदरून और गतसमनी बाग की तरफ जा रहा हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाए। और तुम जानते हो वो कौन है, वो हम हैं। हम मसीह में ईमान कैसे लाए? रसूलों की तालीम के ज़रिए, क्योंकि वो इरशाद आज़म को अंजाम देने में वफ़ादार थे। उनके वसीला से आज हम यहाँ हैं। और यीशु ने हमारे लिए दुआ की, और गौर करें कि उसने उनके और हमारे लिए क्या दुआ की, ताकि वो सब एक हों। यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। और इसमें रसूलों और हर ज़माना के तमाम ईमानदार शामिल हैं। उसने दुआ की कि हम एक होंगे जैसा वो बाप के साथ था। लेकिन इसकी दुआ का मकसद क्या था? वो भी हम में हों। ये हम सब का मसीह और बाप और रूह के साथ एक होना है। तो क्या मकसद है? मकसद क्या है? दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। और इस लिहाज से हर ईमानदार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के इरशाद आज़म को अंजाम देने का हिस्सा बन सकता है। आपने देखा जब पालूस बरनबास के साथ वापस गया और उन्होंने कलीसिया कायम की और बुजुर्ग मुकर्रर किए थे, उन लोगों की अक्सरियत ने कभी लुस्त्रा, इकोनियम और अंताकिया को नहीं छोड़ा। वो यीशु मसीह की कलीसिया का हिस्सा थे। वहाँ पर दुनिया के उस ख़ास शहर में रोशनी बने। खुदा हर किसी को ज़मीन की इंतहा तक जाने के लिए नहीं बुलाता, लेकिन वो हम में से हर एक को अपने खुदावंद यीशु मसीह के इरशाद आज़म को अंजाम देने का हिस्सा बनने के लिए बुलाता है, क्योंकि ये उन पांचों पहलुओं से मुताल्लिक है। तो 81 और जवाब का सवाल ये है, एक दूसरे से मोहब्बत करने की यीशु मसीह की नसीहत और इत्तेहाद के लिए उनकी दुआ का तल्लुक़ तमाम ईमानदारों की इरशाद आज़म को अंजाम देने की ज़िम्मेदारी से कैसे है? मैंने पहले ही इसकी दुआ से इसकी वजाहत की, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ इस बात का इश्तराक करती हूँ कि उसने उन लोगों के लिए क्या दुआ की थी। वहाँ बालाखाना में उसने ये कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और अगर आप सियाको सबाक पर वापस जाएं तो वो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते थे। वो एक दूसरे से बहस कर रहे थे, वो एक दूसरे से झगड़ रहे थे। यहाँ तक कि याकूब और यूहन्ना भी इस जगह में रहने की कोशिश कर रहे थे जहाँ वो यीशु मसीह के दाएं और बाएं उसकी बादशाही में होंगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो पतरस के साथ भी लड़ रहे थे और यीशु ने उस वक्त उनके पांव धोए, याद है, और वो खादिम बन गया। और वो कहता है, एक दूसरे से मोहब्बत रखो कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, कि तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये एक नया हुक्म है। आप पुराने हुक्म को जानते हैं, ये मूसा ने कोहे सीना पर दिया था। ये एक नया हुक्म है जो उस सब का मजमुआ है। ये एक दूसरे से मोहब्बत रखना है, नया हुक्म। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मैंने अभी तुम्हारे पाँव धोए हैं, मैंने खुद को आजिज़ कर दिया है, और मैं तुम लोगों को तैयार कर रहा हूँ कि अगर तुम इरशाद आज़म को अंजाम देने जा रहे हो तो तुम्हें एक दूसरे की खिदमत करनी होगी। क्या ये हैरत अंगेज़ नहीं है? वो सलीब से थोड़ी ही दूरी पर हैं और ये लोग अब भी बहुत जिस्मानी और बहुत गुनहगार हैं, लेकिन ये सब बदलने वाले हैं। जब वो मर गया, दोबारा जी उठा और रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ। यही वो आदमी थे जिन्होंने दुनिया को बदल दिया, और इसीलिए हम यहाँ हैं। और उनके पैगाम की वजह से, और इस तरह यीशु मसीह ये कहकर बात ख़त्म करता है, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यीशु के ज़माने में बहुत से शागिर्द थे, यूहन्ना के शागिर्द, हेरोदीस के शागिर्द, फरीसियों के शागिर्द, मगर उसने कहा, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। असूल ये है, चूँकि खुदावंद यीशु मसीह मर गया और दोबारा जी उठा ताकि उन सब के लिए नजात का बाइस बने जो इस पर ईमान लाए। इसलिए हमसे जो हो सकता है हमें वो करना है ताकि पूरी दुनिया तक ये पैगाम पहुंचा सकें।